Good morning, everyone. Today, again, I will start with functions, mathematical functions. Okay. And then I will take some more functions. Okay. So I'll start with the mathematical function. So last function was math.10. And I always share screen and then teach. So I'm sharing a screen for you. The screen is shared. And I will take few more things here. First, I will take a word so that I will write what I'm going to teach you. Okay, one word I have taken. And second, I will take here Python. Python ideally. These things are required, so I will take this. So last word, because we can do programming here also, that's not a problem. Math. And then we write math dot 10. Suppose I write here 45. So math dot 10. This 45 is basically a radian. So when we put some radian in 10, that is as parameter, the result we get it here as 1.61. So no need of going to detail or to math or to log table and nothing. Just you should know the function. What is the utility of this function? Next is your degree. Next is your function is degree. इस एग्जांपल को लिख लो import math.10 45 नहीं प्रोग्राम है नीचे रिजल्ट है. नेक्स्ट इज योर डिग्री. Degree. So in degree, what I'm doing here next, math dot degree. M capital नहीं होगा, small होगा. Make it small here. And write definition of it. Math dot degree. देखो बल्कि इसमें S भी है, degrees. अभी मैंने grammar देखा degrees. The degrees converts angle from radians to degrees. From radians to degrees. The degrees converts angle from radians to degrees. From radian to degrees. I will take here an example of Python so that it's clear to you. Again, you have to write import, you have already done. So math dot small example you have to write in exam. We may ask you degrees, and if I give here 90, the result will come as 5156.620. Okay. If I give here math dot degrees, थोड़ा सा ये फंक्शन समझ लें 2, the result will be 114.591. 2 is basically a radian. 2 is basically a radian. Okay, next is your radians. Math dot radians. ये last function है बस. Math dot mathematical function में ये last है. Math dot radians. Write definition for it. Converts angle from degrees to radians. Converts angle from degrees to radians. आपने देखा होगा मैंने बहुत छोटी definition लिखवाई है. I have not given you very big definitions. So 90 अगर है तो 1.570 is the radian. Degrees to radians. मैथ्स नहीं पढ़ानी इसलिए मैं आपको रेडियन क्या होता है और कैसे कन्वर्ट होता है ये सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा. अब एक और मैं आपके लिए लूंगा टुडे रैंडम. आगे सारी प्रोग्रामिंग में ये फंक्शन यूज होंगे. रैंडम RAND. इसके लिए जो मेथड यूज होगा वो होगा इंपोर्ट रैंडम. अब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा लूं पहले फिर लिखना. रैंडम पाइथन हैज अ मॉड्यूल. रैंडम के बारे में पढ़ा रहा हूं. पाइथन हैज अ मॉड्यूल
Python has a, आपको ये रैंडम पढ़ाते जा रहा हूँ, random. Python has a module random that provides random numbers. That provides random numbers. बल्कि ऐसे लिख लो, that provides random number generators. That provides random number generators. मतलब number generates होते हैं. Random number means a number generated randomly by chance. अब ये बाई चांस में बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाना, कुछ भी नहीं, मतलब जो हम एक रेंज देंगे उसी के हिसाब से कोई भी नंबर. इट जनरेट्स नंबर रैंडमली लिख लो, बाई चांस हटा दो चलेगा. इट जनरेट्स रैंडम, इट जनरेट्स नंबर्स रैंडमली. अब इसके में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वन इज यू हैव टू राइट इंपोर्ट रैंडम. ये आपको मेथड आई छोटा होगा. इंपोर्ट कीवर्ड किस लिए यूज होता है, टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स, टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज, टू इंपोर्ट पैकेजेस. अगर डेफिनेशन नहीं लिखी है तो लिख लीजिए, अगर इंपोर्ट की डेफिनेशन नहीं है तो लिख लीजिए. इंपोर्ट इज यूज टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज, पैकेजेस which are not predefined, which are not predefined within Python interpreter. To get these functions from modules, libraries, packages, to get these functions from modules, libraries, packages, we have to use import function. We have to use import. पूरी डेफिनेशन लिखवा दिया इस तरह. इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन. अब इसमें इसके रैंडम के साथ जो पहला फंक्शन है वो है रैंडम, RANDOM, रैंडम. ओके, अब आर छोटा, रैंडम. रैंडम में what it does, you write definition. It generates a floating point number between 0 to 1. Between 0 to 1. I ask Rishi, your name is on top, I'm asking you. Rishi, it generates random numbers between 0 to 1. कितने नंबर जनरेट होंगे बताइए जल्दी, तो मैं आगे बढ़ूं. ऋषि अनम्यूट करो, जवाब दो. एनी ऑफ यू, 0 to 1 में कितने रैंडम हो गए ऋषि? सर इनफाइनाइट. Good. Infinite number 0 to 1 में. We are not talking of integer number, rather we are talking of floating, यानी real number, यानी decimal fractional numbers. So infinite is the correct answer. आप लोग भी ध्यान रखना. अब मैं इसका एग्जाम्पल एक बताता हूँ, आप देखिए इसे. तो मैं प्रोग्राम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट कोड कर रहा हूँ. ये डायरेक्टली इन पाइथन शेल ओनली, इसी वाली स्क्रीन पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए. इंपोर्ट रैंडम, दिस इज द मॉड्यूल, एंड हियर आई एम राइटिंग प्रिंट random and run it. That is enter. Enter. Module is not callable. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. अभी करता हूँ इसको. इसमें बस यही प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्टली एडिट नहीं होता है, इसलिए अपन स्क्रिप्ट में ही जाते हैं और वहीं पे प्रोग्रामिंग करते हैं. इसका एक रीजन ये भी है. इसमें जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि हमें लिखना था रैंडम डॉट रैंडम एंड रन इट. ओके, नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, रैंडम फाइल का नाम भी दे दो.
result not responding well. Okay, there may be some problem. Again, Python is not responding. What is the reason not responding Python? Ideally, sub process does not make connection. फिर से start करते हैं. Random. Python ideally. Python ideally. And you. Last. Oh, just a minute, beta. Python is giving some problem. Python ideally. Ideally, sub process does not make connection. See the start of failure action of the Docs online at HTTP. Okay. This is another problem. फिर से इंस्टॉल करके देखता हूँ तो कि मेरे पास अगर डाउनलोड में पड़ा हुआ है मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा चेक इट पड़ा हुआ है तो I have to take Python again. Wait. अब बस प्रोसेस देखो यार. Downloading. Wait. Download. बस ये अपडेट हो जाए. Yeah. Okay. Meantime, you write some function here. Meantime, you write some function. You write another function. I will explain all this together. You write rand range, RANDRANGE, rand range. Rand range. It is used to generate random numbers
It is used to generate random numbers in the range 0 to stop value. 0 to stop value. Example आपको दे रहा हूं. The function is rand range. Rand range 0 to stop value. अगर हमने दे दिया सपोज 10, तो 0 to 10 ये चलेगा. समझ में आया? पहला यूज इसका. This is the first use. चाहो तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, rand range. सेकेंड लिखो, it generates, first point is 0 to stop value. Stop value is 10. This is the example again. इन सब के आगे रैंडम लगाना जरूरी है. RANDOM, random. The first use is 0 to stop value, 0 to 10 for example. क्लियर है सुरभि, निश्चल, समृद्धि, मानव जैन, ये बात समझ में आ रही है? रैंड रेंज एक नंबर जनरेट करेगा रैंडमली बिटवीन 0 to 10. ये रैंड रेंज का पहला यूज है. इंटीजर नंबर, वो भी इंटीजर नंबर ध्यान रखना. नेक्स्ट पॉइंट इज रैंड रेंज. जो नेक्स्ट पॉइंट है, रैंड रेंज जनरेट्स a random number in the range. सेकंड पॉइंट डालना, random numbers in the range start to stop. अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 and then I have written comma 20. इसका मतलब क्या हुआ? 10 से स्टार्ट होगा और 20 तक जाएगा. 10 से स्टार्ट होगा और 20 तक जाएगा. समझ में आया? सक्सेसफुल तो दिखा रहा है, बस चल जाए. शट डाउन करके शायद स्टार्ट होगा. फिर वेट, एक और ट्राई कर लेता हूँ. जैसे कोई और पाइथन का वर्जन ले लेता हूँ. मेरे पास कई वर्जन रखना पड़ता है, क्रैश होने के कारण ये दिक्कत आती है. थ्री 3.4 चलाता हूँ. कोई बात नहीं, आज चल गया ये. फाइल, इंपोर्ट रैंडम, पहला वाला एग्जांपल प्रिंट. पहले ये कर रहे हैं, देखिए क्या है. random dot run it. ओके, नाम दे दो. तो द रिजल्ट हैज कम एज 0.1. मैंने कहा था, आपने किसी ने परीक्षा ने बताया था, या सॉरी किसी और बच्चे ने बताया था कि इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा, जिसने बताया था. ओके, सो 0.1. अब मैं इसकी जगह पर, एक मिनट, इसमें किसी को डाउट तो नहीं हुआ? प्लीज बताइए, किसी को ये समझने में डाउट तो नहीं हुआ? शो योर थम्स अप कि रैंडम कैसे जनरेट हुआ. अगर मान लो मैं एक बार और इसे रन करूंगा, अगर आई एम रनिंग इट अगेन, यू आर देयर ना? सुरभि, निश्चल, समृद्धि, मानव, ऑल आर प्रेजेंट नो? जस्ट सी, इफ आई रन इट अगेन, देखो अब क्या आया? 0.3786. तो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट करेगा. आप समझो इस बात को. मगर ये क्या बहुत बड़ी रेंज हो जाती है. अब हमें क्या चाहिए कि एक पर्टिकुलर, एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज चाहिए. तो हम लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड रेंज. अब मैंने लिख दिया 5. आप ध्यान देखना, अच्छे तरह समझे, बल्कि और कम कर दो 3. तो 0 1 2 3 रन.
run module. Okay. What is the difference? The object is attribute rand spelling rand run module. Okay. 0 आया. अब मैं दूसरी बार रन कर रहा हूं, देखना ध्यान से. 0 फिर से भी आ सकता है, 0 फिर से भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है उसमें. ये रैंडम है. 0 फिर से भी आ सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. मत सोचना कि ये 0 बार बार आ सकता है. रन. अगेन व्हाट आई एम डूइंग हियर, आपको दिखाने के लिए बार बार मुझे रन करना पड़ा है. ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा अभी, मगर वो बार बार मुझे रन करना पड़ा, उससे बचने के लिए मैंने एक लूप लगाया है. अब आप देखिए यहाँ पे 2 भी आया रिजल्ट, 1 भी आया, 0 भी आया. इसमें भी देखिए एक बार 2 आया था. ये लूपिंग में बाद में पढ़ाऊंगा. तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो रेंज फंक्शन है, ये आपका क्या प्रिंट करेगा? बिटवीन नंबर 0 to 1. तो मैं आपको एक लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ. 0 1 2 3, 0 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है. क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स. अच्छी बात है, मुझे समझ में आ गई बात. अब नेक्स्ट आइए. आई एम गिविंग हियर 3,5. इसका मतलब 3 और 5 के रेंज में नंबर सिर्फ जनरेट होगा. अब मैं रन कर रहा हूँ इसे. रन मॉड्यूल. ओके. एक मिनट रुको, पुराना रेज्यूमे, पुरानी वाली स्क्रीन एक बार बंद करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं. रन. रन. और रिजल्ट आया, समझ में आया? 3 to 5 है मेरा रेंज. रन करता हूँ एक बार और, देखो 3 आया. रन किया एक बार और, क्या रिजल्ट आया? 4 आया. फिर रिजल्ट रन किया, क्या रिजल्ट आया? 4 आया. कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही आए, वो एक पर्टिकुलर 4 आया, आ सकता है, बार बार 4 आ सकता है. 4 आया. अभी मैं लूप में डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग भी रिजल्ट आता है. ठीक है, इस तरह से. तो आपको बात है. अच्छा, अब आपके जो आप देखते हैं ना गेमिंग प्रोग्राम्स जो बनते हैं, कि रैंडमली अलग अलग नंबर जनरेट हो जाते हैं, या अलग अलग ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, अलग अलग रिजल्ट आता है. उसके पीछे रैंडम फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है. जनरेट्स रैंडमली, कुछ भी दे सकता है ये. बार बार 4 भी दे सकता है, बार बार 1 भी दे सकता है, बार बार 2 दे सकता है. अभी मैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग कराऊंगा जिसमें आपसे इसमें इस कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग जब पढ़ाऊंगा तो और मजा आएगा. अभी तो आप बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्लीज आस्क मी, अदरवाइज शो योर thumbs up, that's it कि you have understood. थर्ड पॉइंट ऑफ रैंड रेंज लास्ट पढ़ा दूं आज के लिए, उसका क्लास खत्म करूंगा. रैंड रेंज टू जनरेट अ रैंडम नंबर. थर्ड पॉइंट, रैंड रेंज की है टू जनरेट रैंडम नंबर्स इन द रेंज स्टार्ट टू स्टॉप. अभी आपने स्टार्ट स्टॉप पढ़ा था. स्टार्ट टू स्टॉप वही है. स्टार्ट टू स्टॉप with a step value. with a step value, इसका मतलब ये है कि अगर हमने सपोज यहाँ पे 1,5 दिया और 2 दिया, तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा और 5 आएगा. इस बात को समझो. 2 का स्टेप में रिजल्ट आना है. रन करता हूं. चेक करो, विंडो को एक बार बंद करके फिर से.
गलत विंडो बंद हो गई क्या? रन इट, रन मॉड्यूल 1 आया। ओके, फिर उसके बाद रन मॉड्यूल 1 आया। अब वही है कि मुझे लूप लगाना पड़ जाता है मजबूरी में, ताकि बार बार रन करने से। और आई इन रेंज, ये लूपिंग में बाद में पढ़ाऊंगा। पहले 1, 10, 20, 100 कितनी बार भी, ये सब चीजें मुझे आपको समझानी है। आप वैसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए रिजल्ट 3333 फिर से आने लगा। क्या क्या रिजल्ट आया देख लीजिए। देखिए 3333131311 यही रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया? यस और नो? दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll meet in the next class. I have to take another class. Students are waiting. Till then, goodbye.